Okay, good morning, children. Today we are going to study about the first classification system, first classification, I mean the Bird Kingdom, given by Whittaker. Whittaker had classified all the living organisms into five groups, five kingdoms. It was five kingdom. Now the first kingdom is Monera. So let us discuss about Monera kingdom. Okay, so first point about Monera kingdom is that Monera kingdom include all prokaryotes. Now, what are the prokaryotes? Here it is given. In prokaryotes, the genetic material is naked. Naked means it is not enclosed by nuclear envelope. यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वो होगा क्या होगा वो होगा डीएनए. इट इज अ सर्कुलर डीएनए एंड इट इज नॉट कवर्ड इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप. यानी ये कंप्लीट एक न्यूक्लियस जो एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है वो ऐसा कुछ नहीं बनाता है. यहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं बनता है. ओके. Prokaryotes are typically unicellular organisms. Mind it, they are not typically, they are always, in fact, they are always unicellular organisms. सो ये आपको पता चल गया कि मोनेरा किंगडम में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो हमेशा यूनिसेलुलर होंगे. ओके. और उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए. इट्स नॉट आरएनए, इट्स डीएनए. और कैसा डीएनए होगा? इट इज सर्कुलर. सर्कुलर यानी आप जब इसको पूरा ओपन करोगे, क्योंकि पहले तो डीएनए पूरा इस तरह से आपका बहुत ही ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में, नेटवर्क फॉर्म में होता है. जब आप इसको ओपन करोगे तो यू विल सी दैट इट कम्स इन अ सर्कल. ओके. एंड वन मोर थिंग, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यानी इसके दो स्ट्रैंड्स हैं, दो थ्रेड यानी दो धागों से बना हुआ है ये डीएनए. ओके. मोनेरा किंगडम हैव राइबोसोम्स and simple chromatophores. These are the only subcellular organelles. देखो यहाँ पर एक चीज और आपने पढ़ी है कि प्रोकैरियोट्स में यानी मोनेरा किंगडम में सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते. वो पार्ट जो लिविंग है और मेम्ब्रेन से कवर्ड है उसे कहते हैं सेल ऑर्गेनेल. ओके. जो सेल के अंदर है. यहाँ पर केवल दो ही चीजें हैं एज अ सेल ऑर्गेनेल, that is राइबोसोम एंड chromatophore. And ribosome also is smaller than the eukaryotes. It is 70S type, 70 Swedberg unit. Okay. Sap vacuoles do not occur. Gas vacuole may be present, as you have read in plants. जब आपने क्लास 9 में प्लांट और प्लांट सेल पढ़ा था तो आपने पढ़ा था ना वहां पर कि वहां पर वहां पर फूड वैक्यूल्स होते हैं, वहां पर एक बड़ा सैप वैक्यूल होता है. सो इनमें सैप वैक्यूल नहीं होता है. Somewhere they have gas vacuoles. Okay. The predominant mode of nutrition is absorptive. Maximum monerans are absorptive in nature. They absorb the food, they digest the food outside, and then they absorb it. So they are mostly they are heterotrophic. But few bacteria are photosynthetic also, and few are chemosynthetic also. We will discuss about them in detail in coming slides. Then monerans may be non-motile or they be motile. Move कर सकते भी हैं या नहीं भी कर सकते हैं. और जब ये move करेंगे तो movement के लिए organelle कौन सा है, part कौन सा है? That is flagella. So if movement occur, then it is due to flagella. और sometimes by gliding. Gliding means क्योंकि इनकी सरफेस जो है वो स्मूथ होती है, तो अगर ये अपने किसी सरफेस पर है तो ये उसके ऊपर में स्लाइड करेंगे, ग्लाइडिंग मोशन की तरह से मूव करेंगे. Most of the monerans bear rigid cell wall. Cell wall they have. Cell wall is made up of mainly of the peptidoglycan, but again on the basis of cell wall they are divided into two different groups. One is gram positive bacteria and one is gram negative bacteria. That also we'll discuss in further slides. Reproduction is mainly asexual and it is by binary fission. आपने पढ़ा था binary fission, that one bacteria divides into two parts. और sometimes it is budding, जैसे आपने yeast में पढ़ा था वैसे इसमें भी हो सकता है budding. यानी एक बैक्टीरिया है, इसने छोटा सा कोई दूसरा डॉटर सेल बनाई और वो डॉटर सेल उससे अलग हो गई, that is budding.
माइटोटिक apparatus is not formed during cell division. देखो यहाँ पर जो सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन इज वेरी ऑफ टू टाइप्स, माइटोटिक एंड मियोटिक डिवीजन. माइटोटिक डिवीजन में देयर आर 4 फेजेस. थोड़ा सा बेसिक आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, अदरवाइज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे. यहाँ जो डिवीजन है, जैसे न्यूक्लियस का, जैसे हमने कहा बाइनरी फिजन में दो पार्ट में टूट रहा है न्यूक्लियस, जो इसका बीच का न्यूक्लियस तो था नहीं, सॉरी, इसमें इसके पास जो डीएनए था, लेकिन ये इसमें आपको आप पूरा माइटोटिक की तरह से डिटेल्ड फेज या डिटेल्ड apparatus प्रोसेसेस नहीं दिखाई देती हैं. दैट इज व्हाई हियर इट इज आल्सो नोन एज एमाइटोटिक डिवीजन. एमाइटोटिक क्योंकि प्रॉपर डिवीजन डीएनए का नहीं होता है. ओके, नाउ द एग्जांपल्स ऑफ मोनोलर किंगडम्स आर आर्कीबैक्टीरिया, Eubacteria, Mycoplasma, and Cyanobacteria. So we will discuss about all these in detail. The monorans are the smallest and most abundant organisms on earth. This is said that during evolution, monorans यानी bacteria were the first organisms to evolve. First living organisms जो earth पर बने थे, they were the bacteria. Then from bacteria, all the living organisms, fungi, plants, animals, we all developed from these Monera kingdom only, these bacteria. Okay. So coming to the next slide, let me go to the next slide. अब तो नॉर्मल जो इनके फीचर्स है वो तो हमने पढ़ लिया. Now let's discuss about in detail about their shape, their structure, and other properties. So first of all, shape. Bacteria, मोनेरा किंगडम को ही हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, इसलिए ध्यान रखना, हम लोग मोनेरा किंगडम बोले या बैक्टीरिया बोले, they are equivalent. So bacteria are of 4 different shapes. One is coccus. Coccus means spherical. Second is bacillus, rod-like. Third one is Guama shaped, and that is known as vibrio. Vibrio shaped. जैसे Guama का ड्रॉ करते हैं अपना इस तरह से, Guama shaped. So they are Guama shaped. And spirulum. Spirulum अगर ये बिल्कुल spirals हैं. So these are the basic shape. Now you all know that bacteria are unicellular, but in most of the cases, many cells, they get attached to each other. So they can be found in the when the 2 cells are attached to each other, 3 cells, 4 cells, or many cells are attached to each other. But it doesn't mean that they are multicellular organism. Why? Because even if 2 or more cells are present, all cells are they are totally independent with each other. अपना रेस्पिरेशन, अपना न्यूट्रिशन, अपना एक्सक्रीशन, सब कुछ अपना कर रहे हैं. केवल क्या है, क्योंकि इनकी जो सरफेस है वो इस तरह से स्टिकी है, इसलिए वो एक दूसरे के साथ में स्टिक करके एक प्रॉपर शेप बनाते हैं. तो लेट अस सी, अगर ये स्टिक है तो कैसे ये शेप होगा इनका. सी, these are the different names of arrangement of the cells. Like first one, coccus. Coccus में अगर 2 coccus एक साथ हैं, then it is known as diplococcus. If these coccus are in a chain, it is known as streptococcus. If it is found in the form of tetrad, it is known as tetrad. If it is found in a form of cluster group, it is known as staphylococcus. Or they may be present as an octet, यानी कि 4 cells 1 2 3 4 फ्रंट में और 1 2 3 4 पीछे में इस तरह से अरेंज है, तो they are known as sarcini. So these are the different forms in which cocci can be present. Same way, let us see bacillus. Bacillus में if 2 bacilli are present. अच्छा, एक चीज और बता दें, coccus is a singular term. Plural होगा cocci, COCCI. ऐसे ही bacillus singular term है. Bacilli आपका प्लूरल टर्म है. स्पाइरुलिना और दूसरा था वाइब्रियो, ये ग्रुप्स में नहीं पाए जाते हैं, तो दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, तो इनको हमको वाइब्रियो और स्पाइरुलम ही बोलना है. सो बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, दैट मींस bunch of 2. Streptobacillus, strepto means chain. Now this is another one, trichome. It is in the chain, but all the cell wall are fused here.
So ये सब थोड़ा सा आपके लेवल से हायर का है. Then palisade. Palisade when they are arranged in a standing position. देखो यहाँ क्या था, यहाँ पर वो laterally present थे, यहाँ पर standing, एक खड़ा दूसरा खड़ा तीसरा खड़ा, इस तरह से standing position में, तो palisade. Okay. Sometimes some shapes are in between coccus and bacillus. ना तो complete coccus है ना तो complete bacillus है, so उसको हम लोग कहते हैं coccobacillus. दोनों के बीच का देखो, एक थोड़ा गोल भी है और बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं है, तो coccobacillus. Then vibrio, you know, spirillum. Spirillum का एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, spirochete. Okay, so rest so that's not in your syllabus. So these are the different types and shapes of bacteria. Now coming to the size, कितने छोटे होते हैं. अब हमने कहा कि they are prokaryotes, unicellular, and they are the smallest in size among all the living organisms. So let us see their size. The average diameter of spherical bacteria is spherical, यानी circle वाले की 0.5 to 2 micrometer. किसको पता है micrometer, किसको नहीं पता है micrometer? Do you know the size? हाँ? मैम नहीं पता. नहीं पता है. ओके. माइक्रोमीटर और म्यू, म्यू इसको लिखते हैं म्यू. It's written as mu. Mu means micrometer. Micrometer is also written as mu. Mu का शेप मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे, MEU mu, and this is equal to 1 upon 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. अच्छा, 1000th time part of meter is known as millimeter, isn't it? एक मीटर का 1000th part, 1000 टाइम छोटा कर दे तो उसको कहते हैं माइक्रोमीटर. और माइक्रोमीटर सॉरी उसको कहते हैं सेंटीमीटर के नीचे क्या होता है, मिलीमीटर. दैट इज नोन एज मिलीमीटर. और अगर मिलीमीटर को भी 1000 पार्ट छोटा कर दे तो वो आता है माइक्रोमीटर, यानी कि म्यू. म्यू का शेप मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ. म्यू इज रिटन एज लाइक दिस, म्यू. ओके, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है माइक्रो, दिस इज माइक्रोमीटर और म्यू. सो यानी कि कितना सो छोटा है ये, 1000 10 टू दी, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -6, 10 टू दी पावर -6 मीटर. ओके, 6 क्यों, 1 2 3 4 5 6. तो यानी कि हम सबसे छोटा अभी तक हम लोग पढ़ते थे मिलीमीटर. अब मिलीमीटर के भी छोटे जाओ. मिलीमीटर जानते हो, आपकी जो स्केल होता है, स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी वाली जो लाइंस होती हैं, दैट इज मिलीमीटर. अब इस मिलीमीटर तक भी 1000 पार्ट आप करो, उस 1000 पार्ट में भी 0.5 ओके से लेकर के 2 माइक्रोमीटर तक, दैट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया. सो हाउ स्मॉल दे आर, यू कैन इमेजिन. Rod shaped bacteria, they are slightly larger than the cocci bacteria, and their length is 1 to 10 micrometer and diameter is 0.25 to 1 micrometer size. The smallest bacteria, or we can say the smallest known living organism, is Mycoplasma gallicapticum, and its size is around 200 to 300 nanometer. Nanometer means 10 to the power -9, 10 to the power -9 meter. इतना छोटा ये होता है. Okay, and they are thought to be the world's smallest bacteria. Largest bacteria is Theomargarita namibians. This is the world's largest bacteria, and its size usually is 0.1 to 0.3 मिलीमीटर. तो एटलीस्ट ये मिलीमीटर में है, यानी 1 मिलीमीटर से छोटा है, 1/10 मिलीमीटर से 0.3 मिलीमीटर की साइज का है, बट it is the biggest among all other bacteria, and some of its species are found as large as 0.75 millimeter.
So this is the range of bacteria in size. Okay, so generally तो they are of the size of micrometer. Micrometer में भी 0.5 से 2 micrometer के size में ये होते हैं. Am I clear to this? Children, are you all understanding? Yes. Okay. तो ये तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि उनका शेप कैसा होता है और उनकी साइज क्या होती है. अब आते हैं उनका सेल कैसा होता है, सेल का स्ट्रक्चर. So this is the diagram of a basic cell. See, after the class, I'll send you a whole PPT so that you can make your own notes from here. So here you have to concentrate in understanding only. And after the completion of this class, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, आज सिर्फ हम आपको मोनेरा किंगडम पढ़ाएंगे. Once it is completed, you have to read it the same thing from NCERT. Okay. So this is the structure of a general. It is a general diagram. कौन सा होगा ये? कॉकस, बैसिलस, स्पाइरुलम, कौन सा है? कौन सा बैक्टीरिया ड्रॉ किया मैंने? What is the shape of this bacteria? Oval. It is oval, but actually it is bacillus. It is bacillus. Okay, rod shaped. It is rod shaped. मैंने थोड़ा और इसको स्ट्रेच करना चाहिए था, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया डायग्राम को. So it is a bacillus shape. इसलिए बैसिलस शेप है क्योंकि ये जो फ्लैजेलम दिख रहा है ना आपको, किसी भी कोकाई में फ्लैजेलम नहीं होता है, किसी भी कोकस बैक्टीरिया में फ्लैजेलम नहीं होता है, मूवमेंट नहीं होता है. बैसिलस में होता है, इसलिए आप एकदम आंख बंद करके बोल देंगे इट इज अ बैसिलस बिकॉज इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट है. ओके, सो you can see it has some small finger like projections also. These finger like projections are called as पिलाई. छोटे छोटे से देखो, छोटे छोटे से ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है. सो दे आर पिलाई. एक बड़ा, बहुत ही बड़ा लंबा सा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं फ्लैजेलम. और अगर बहुत सारे होंगे फ्लैजेलम तो उसको कहेंगे फ्लैजेला. ओके, देन इसका सेल वॉल देखो, सेल वॉल में 3 लेयर है. देखो सबसे बाहर में क्या है? कैप्सूल और स्लाइम लेयर. जब ये हार्ड है इट इज नोन एज कैप्सूल, और अगर ये थोड़ी सी मॉइस्ट है, लिजलिजी सी है, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर. सो आउटर मोस्ट लेयर इज कैप्सूल और स्लाइम लेयर, देन सेकंड इज सेल वॉल, एंड थर्ड वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो देखो एक इसकी सर्वाइवल इसलिए भी बहुत पॉसिबल है, इतना ज्यादा एबंडेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके पास 3 लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके ऊपर सेल वॉल, उसके ऊपर कैप्सूल और स्लाइम लेयर. सो 3 लेयर्ड कवरिंग है. Then there is a cytoplasm in between. Cytoplasm. Then this is a nucleoid because it is not nucleus. All the DNA, the main DNA is concentrated at one position. एक जगह पर confined होकर के present है. So this resembles the nucleus. That's why it is known as a nucleoid. It is not a proper nucleus. It is a nucleoid. Okay. And this nucleoid is made up of, as you know, it is made up of DNA. कैसा DNA होगा? स्ट्रेट या सर्कुलर? सर्कुलर DNA होगा. कितने स्ट्रैंड्स होंगे? सिंगल या डबल? DNA में कितने स्ट्रैंड्स होंगे, सिंगल और डबल? मैम अभी तो मैंने बताया था ना कि DNA में आपको डबल स्ट्रैंड दिखेगा, तो डबल स्ट्रैंडेड DNA. ओके. अच्छा, कुछ बैक्टीरिया में apart from this DNA, this nucleus DNA, there is also a small DNA present. It is not present in all the bacteria, but in some bacteria another DNA is present which is known as plasmid. Now it's very important to know about this because in class 12 we are going to study in detail about the plasmid. Plasmid क्या होता है? सुनो, न्यूक्लियस के पास, अच्छा, what is the function of nucleus in general? Ma'am, it is the brain of the cell. Provide. It command for. Very good. It commands, it controls all the functioning of the cell. यानी कि सेल वॉल कितनी बनेगी, क्या काम करेगी, कैप्सूल कब काम करेगा, कब ये स्लाइम लेयर कन्वर्ट हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में क्या होगा, फ्लैजेलम को कैसे काम करना है, राइबोसोम को, everything is controlled by this nucleoid DNA. Okay. So this nucleoid DNA has genes. It has genes of all the structure and function.
सेल के पास जितना भी पार्ट है, कितने पिलाई बनने हैं, कितने फ्लैजेला बनने हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर भी इस डीएनए के पास में कैसे ये बैक्टीरिया का शेप होगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या फंक्शंस करेगा, सारी इंफॉर्मेशन, कब रिप्रोडक्शन करेगा, किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा, और जो नया बैक्टीरिया बनेगा उसमें क्या क्या जीन्स जाना चाहिए, एवरीथिंग, एवरी इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियोइड। तो फिर प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड कंटेन्स जीन्स ऑफ वन कैरेक्टर ओनली। कोई एक एक्स्ट्रा एडिशनल कैरेक्टर होगा जिसके लिए यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है। जैसे मैंने कहा कि सपोज ये जीन है आपका, मैंने लिख दिया TI प्लाज्मिड, दिस इज वन एग्जांपल, TI प्लाज्मिड। TI का फुल फॉर्म है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। यानी अगर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है और ये बैक्टीरिया पैरासिटिक है, तो ये होस्ट के अंदर में ट्यूमर बनाएगा, यानी होस्ट की सेल को एनलार्ज करेगा, होस्ट की सेल में डिवीजन को बढ़ा देगा, बहुत डिवीजन होगा और बढ़ता जाएगा, ट्यूमर बन जाएगा। जैसे कि आप देखते हो जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस यानी कि आपके दालों वाले जो पौधे होते हैं, दालों वाले पौधों की जब जड़ आप देखेंगे, रूट्स, तो आप देखोगे उसमें गांठें हैं, ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गांठ। तो वो जो गांठ बनती है, क्योंकि उसके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ओके, और ये राइजोबियम बैक्टीरिया ये इंड्यूस करता है ट्यूमर। और क्यों करता है इंड्यूस ट्यूमर? बिकॉज इट हैज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ओके, ऐसे ही मान लो कोई दूसरा बैक्टीरिया लेते हैं, उसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है, सो वो क्या करेगा? वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट एंटीबॉडीज। ओके, यानी कि अगर हम एंटीबॉडीज से उस बैक्टीरिया को मारना चाहेंगे तो वो नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि उसके पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन है। Okay, then it has food granules. So these are all the features present inside the one bacterial cell. Now let us discuss in detail about one by one about each and every part. First one is cell wall. Cell wall is the outer covering and it is made up of polysaccharide and polypeptide. मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, तो सेल वॉल में आपको पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसैकेराइड, सैकेराइड मींस शुगर, जितने भी शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम कहते हैं सैकेराइड्स। ओके, और कार्बोहाइड्रेट्स का जो सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, इज नोन एज मोनोसैकेराइड। जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज इज वन मोनोसैकेराइड। और अब अगर दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल या एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिल गया, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का एक एक मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल्स मिले हैं, तो ये बनाएगा डाइसैकेराइड। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर बनाता है आपका फ्रक्टोज मिलकर बनाता है सैक्रोज, सुक्रोज। सुक्रोज यानी जो चीनी आप खाते हो ना, दैट इज अ डाइसैकेराइड। ओके, और अगर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड्स मिल जाएं, तो वो बनाएंगे पॉलीसैकेराइड। जैसे सेल्यूलोज, जैसे काइटिन, ये सब क्या है? दीज आर द पॉलीसैकेराइड्स। ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड। बहुत सारे आप पॉलीसैकेराइड्स इन डिटेल पढ़ते रहे हो आगे भी, और आगे अभी एग्जांपल में आएगा व्हेन वी विल डिस्कस इन बायोमॉलिक्यूल्स। सेम वे प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो हेलो, यस मैम, अब आ रही है। आ रही है? ओके, थोड़ा सा कनेक्शन ढीला हो गया था। ओके, पढ़ रही है, देखो। हेलो हेलो, अभी मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आ रही है। ठीक है, मैं हटा दे रही हूँ, उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम थी। सो नेक्स्ट मैं बता रही थी पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, isn't it? लास्ट क्लास याद रखो, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। और जब दो एमिनो एसिड्स मिलेंगे तो उसको कहेंगे हम डाइपेप्टाइड। और जब बहुत सारे
अमीनो एसिड्स की चेन होगी तो उसको कहेंगे हम पॉलीपेप्टाइड. So bacterial cell wall is made up of mainly polysaccharide and polypeptide. Okay, and these are the some type of polypeptide and polysaccharide which are generally found in the cell wall. Peptidoglycan, murine, mucopeptide, these are the common polysaccharide and polypeptide which we found in bacterial cell wall. So that is cell wall. सेल वॉल जब हम बात करते हैं क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है अबाउट द सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. It is highly rigid in shape. It cannot change its shape by itself, and it is totally permeable. Cell wall always is a totally permeable. That means it allows anything to enter or move out. यानी अगर बैक्टीरिया के अंदर किसी चीज को अंदर जाना है और बाहर निकलना है तो सेल वॉल कोई कंट्रोल नहीं करेगा, वो कंट्रोल करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो सेल वॉल हर चीज को, अगर कोई भी चीज लिक्विड है या कोई चीज जिसका साइज छोटा है वो उसके थ्रू एंट्री अलाउ कर देगा. ओके, सो हाँ, सो दैट इज सेल वॉल. इन एडिशन टू सेल वॉल देयर इज अ आउटर स्लाइमी लेयर which is made up of mainly polysaccharide. जो मैंने अभी बताया था इसके पहले के डायग्राम में कि इनमें बैक्टीरिया में सेल वॉल के अलावा एक और बाहर में स्ट्रक्चर था. क्या है ये? कैप्सूल या स्लाइम लेयर. ये जो कैप्सूल या स्लाइम लेयर है, सी जब कहीं डेसिकेशन होता है, ड्राई कंडीशन होता है, बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए हमेशा थोड़ा सा पानी जरूरी होता है, लिक्विड चाहिए ही चाहिए पानी. और अगर पानी नहीं है तो क्या करेगा? उस समय में ये अपने जो स्लाइम लेयर है, आउटर लेयर, इसको ड्राई कर लेगा, इसको बिल्कुल हार्ड बना लेगा और ये बनता है कैप्सूल. तो ये जब ड्राई होगा तो ये कैप्सूल बना के अपने को प्रोटेक्ट कर लेगा अंदर, और वो कैप्सूल हवा में हर जगह उड़ता रहेगा, बहुत दिनों तक ये जमीन में ऐसे ही पड़ा रह सकता है. और जब वापस ये पानी में आएगा तो क्या होगा कि जो कैप्सूल था वो थोड़ा सा स्लाइमी लेयर, स्लाइम जानते हो जिसे आप लोग खेलते थे स्लाइम, वैसा स्लाइम बना लेता है. तो बैक्टीरिया, इट इज ओनली एंड ओनली इन बैक्टीरिया दैट दे हैव एन एडिशनल कवरिंग ओवर द cell wall that is known as capsule or slimy layer. So that is about cell wall. Now next, the innermost layer is, the innermost covering is plasma membrane. This one is plasma membrane. And plasma membrane, children, just mind it, just listen it carefully, that whether it is prokaryote, whether it is eukaryote, whether it is plant, fungi or animals, everywhere, whenever we talk about plasma membrane, it will be same everywhere. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह सेम होती है. इट इज अ 3-layered membrane and it is made up of lipid and protein. Plasma membrane is made up of lipid and protein. And plasma membrane is selectively permeable. Selectively permeable means this will control the entry and exit of molecules. कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, that is being controlled by this plasma membrane. Okay. Then next one is मेसोसोम्स. अच्छा, मेसोसोम्स तो मैंने ड्रॉ नहीं किया था, यहाँ पर मैं एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको मेसोसोम्स क्या होते हैं. जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें कहीं बना नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ में कहीं कहीं पर इस तरह से इनफोल्डिंग्स बना लेती है. लेट मी चेंज द कलर. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कहीं कहीं पे एक्स्ट्रा हो गई है, तो ये क्या किया इसने, ये अंदर की तरफ में ऐसे मुड़ गई है. इसी को कहते हैं मेसोसोम्स. दिस इज नोन एज मेसोसोम्स. ओके, सो मेसोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब क्यों होता है ये इनफोल्डिंग्स, का काम क्या होता है? मेसोसोम्स आर इनफोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. जब ये ग्रोथ करेगा, जब बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन हो जाएगी, जो ये मेसोसोम्स थे ये ओपन हो जाएंगे और उसकी ग्रोथ में हेल्प करेंगे. अलोंग विद दैट, बिकॉज बैक्टीरिया में अभी तक हमने कहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ा है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो रेस्पिरेशन कौन करता है? सो रेस्पिरेशन इज आल्सो बीइंग डन हियर इन मेसोसोम्स. सो मेसोसोम्स इसमें रेस्पिरेशन का काम करते हैं. नेक्स्ट इज राइबोसोम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, चिल्ड्रन? मैम, formation of protein synthesis. Protein synthesis, yes. The function is protein synthesis. So ribosomes help in protein synthesis.
Ribosomes itself are made up of RNA and protein. That is universal truth. Ribosomes किस चीज के बने हैं? Ribosomes बने हुए हैं RNA और प्रोटीन के, दो चीजें मिलके बनाती हैं. Ribosome in prokaryotes are 70S type and they have again two subunits. Ribosomes को अगर हम देखते हैं तो ribosomes में दो यूनिट होते हैं, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट. ओके, ये छोटा पार्ट होता है 40S और बड़ा पार्ट होता है 60S. अब देखो हियर यू डोंट हैव टू ऐड इट अप. इट्स नॉट दैट कि तुमने 40 और 60 को ऐड किया और यहाँ पर आ गया 100. नो, इट्स नॉट एडिशन. जब पास में आते हैं, जब एक साथ में ऐड होते हैं तो देन दे फॉर्म 70S. And this 70S, 40S, 60S, actually these are a new type of unit, new type of measurement units known as sedimentation coefficient. इसको कहते हैं sedimentation coefficient. अगर आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंसेस वाला स्लाइड पढ़ा है तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था. This is known as sedimentation coefficient. और इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं कैसे? S. हम इसको S के फॉर्म में लिखते हैं. ओके, और इसी को हम लोग कहते हैं स्वेडबर्ग्स यूनिट. स्वेडबर्ग साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको सबसे पहले राइबोसोम को इन्होंने वो किया था, राइबोसोम को सेडिमेंटेशन किया था. सेल में से साइड राइबोसोम को सेपरेट किया और उसके बाद में उसको बहुत ही तेज से सेंट्रिफिकेशन मशीन पर रख करके उसको किया. तो देखा कि जो प्रोकैरियोट्स की राइबोसोम है वो जहां पे 70S उन्होंने मार्क किया उसको 10, 20, 30, 40, 50. जो हेवी है वो नीचे जाएगा, जो लाइट है वो और ऊपर आएगा. तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे उन्होंने मार्क किया. तो उन्होंने देखा कि प्रोकैरियोट्स की जो राइबोसोम्स हैं दे गेट कलेक्टेड एट 70 Swedberg unit, 70 sedimentation coefficient. When he separated the two units of this ribosome, इस 70S के जो दो यूनिट्स है उसको अलग अलग कर दिया उन्होंने और फिर से सेडिमेंटेशन किया तो देखा कि जो छोटा यूनिट था वो 40S पे रुकता है, जो बड़ा यूनिट है वो 60S पे रुकता है. तो ये याद रखिएगा, it never means to add up, it's not a counting here. Okay, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन तो बनेगी हर जगह ही बनेगी, प्रोकैरियोट्स में भी बनेगी. सो प्रोटीन का सिंथेसिस करना इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम. देन न्यूक्लियोइड, ऑलरेडी आई explained here. There is one circular double stranded DNA in the genetic material which is known as nucleoid. देखो ये भी एक डिफरेंस है. यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ डीएनए, नंबर ऑफ first तो DNA is made up, it's not only DNA, it is DNA plus proteins forms chromosomes. यूकैरियोट में डीएनए अलग से नहीं होता है, डीएनए और प्रोटीन्स मिलके बनाते हैं क्रोमोसोम्स. उनमें क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है. सो दैट इज वन थिंग. दूसरी चीज की यहाँ पर जो डीएनए है ये केवल एक सिंगल वन है और यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम्स भी केवल एक सिंगल क्रोमोसोम्स नहीं होते बल्कि बहुत सारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. प्रोकैरियोट्स में भी, यूकैरियोट्स में भी, सभी जगह पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है. लेकिन ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये केवल एक वायरसेस एक्सेप्शंस है जिनमें कहीं कहीं कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी पाया जाता है. बट इन जनरल एवरीवेयर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है. डबल स्ट्रैंडेड मींस कि डीएनए हैज टू थ्रेड्स मिलकर के और डीएनए बना रहे हैं, वन थ्रेड एंड टू थ्रेड. ओके, अनदर डिफरेंस इज कि यहाँ पर जो डीएनए है वो सर्कुलर डीएनए है, बाकी जगह पर डीएनए हम लोग जहां पढ़ेंगे वो स्ट्रेट डीएनए होगा. सो दैट इज न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट वन इज प्लाज्मिड. मैंने ऑलरेडी प्लाज्मिड बता दिया है आपको. प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. जो न्यूक्लियोइड डीएनए है उसके अलावा जो डीएनए होगा उसको कहेंगे प्लाज्मिड. It has genes for one character only, and this is not found in all bacteria. ये कोई कंपल्शन नहीं कि सभी बैक्टीरिया में ये पाए जाएंगे, कुछ में हो सकते हैं, कुछ में नहीं हो सकते हैं. And here are the example of different plasmids like TI plasmid, which is tumor inducing plasmid. Second one is RI plasmid, which is root inducing plasmid. Third one is antibiotic resistance
plasmid which provides resistance to the एंटीबायोटिक। यानी कि एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक एक केमिकल है जिससे हम लोग बैक्टीरिया को मारते हैं। ओके, तो अगर हम एंटीबायोटिक इसके पास, इस बैक्टीरिया के पास में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्लाज्मिड है तो एंटीबायोटिक्स का असर उसके ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज फ्लैजेला। अब देखो, मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं। दे कैन मूव, दे कैन नॉट मूव। जैसे मैंने बताया कोकाई, कोकाई में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता है। सो कोकाई जो है दे आर नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछा कि नेम वन नॉन मोटाइल बैक्टीरिया तो ब्लाइंडली लिख दो कोकाई या कोकस, या किसी कोकस का नाम पता है आपको, न्यूमोकोकस बैक्टीरिया, तो आप वो जो है वो नॉन मोटाइल होगा। बाकी जो तीनों है वाइब्रियो, स्पाइरुलम एंड बैसिलाई, तीनों में ही फ्लैजेला हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। एक हो सकता है या बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, so what is this flagellum? Flagellum is a single thread of protein known as flagellin. Flagellin प्रोटीन का बना हुआ एक लंबा थ्रेड होता है, that is known as flagellum. Flagellum has 3 parts. बेसल बॉडी, एक्चुअली ये फ्लैजेलम जो निकलता है ये इसके अंदर से निकलता है, तो यहाँ पर एक होगा बेसल बॉडी, एक होता है यहाँ पर जो सेल के अंदर ही पार्ट है जिसको कहते हैं हुक, और उसके बाद में ये बाहर की तरफ में आ गया फिलामेंट। ये 3 पार्ट्स में प्रेजेंट होता है। और नंबर ऑफ फ्लैजेला, पोजीशन ऑफ फ्लैजेला के बेसिस पर भी आप देख सकते हो कि दे कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेलेशन। वन इज मोनोट्राइकस, जैसे केवल एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। Many flagella are present, but at the one point, from one point, many flagella coming out. This is known as Lophotrichus kind of bacteria. अगर दो ग्रुप में है, देखो ये स्पाइरुलम है, स्पाइरुलम का स्ट्रक्चर दिया है और दोनों एंड पर इसके ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है। This is known as Amphitrichus. And fourth condition can be if many flagella are present and they are present on the whole surface, then it is known as Peritrichus flagella. अब मुझे फटाफट बताओ, what is the function of flagella? Ma'am, it helps in movement. मूवमेंट, स्टार्टिंग वही का, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सके, नॉन मोटाइल जो नहीं मूव कर सके। तो इनका काम क्या हो गया? मूवमेंट कराना। यानी जब ये चलता है तो ये फ्लैजेला जो है ये एक्चुअली ये जैसे नाव चलती है ना, नाव में रो ओर होता है जिसको हम लोग ऐसे ऐसे चलाते हैं, उसी तरह से ये फ्लैजेला ऐसे गोल 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 घूमता है और उसकी वजह से बैक्टीरिया एक पर्टिकुलर शेप में डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ता है। ओके, बैक्टीरिया में अपार्ट फ्रॉम फ्लैजेला देयर इज अनदर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस। छोटे 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 से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, हेयर लाइक यू कैन से, बट बहुत ही छोटे। जैसे देखो आप अपनी बॉडी में देखो, एक हेयर्स है जो आपके सिर पे प्रेजेंट है, बड़े बड़े हैं, इसको आप कहते हो हेयर, तो सपोज ये फ्लैजेला है। और दूसरे होते हैं आपके बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं जिसको आप कहते हो रोए, छोटे छोटे। तो ऐसे ही इतना ही डिफरेंस होता है। फ्लैजेला हमेशा लॉन्ग होगा, इसके नंबर्स कम होंगे, लेकिन जो ये आपके छोटे छोटे हेयर्स हैं ये पूरे सरफेस पर होंगे और बहुत ही छोटे छोटे साइज के होते हैं। दे आर नोन एज फिम्ब्रियाई और पिलाई। ओके, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिम्ब्रियाई का काम अलग है, पिलाई का काम अलग है। ओके, सो दे आर माइन्यूट हेयर लाइक अपेंडेजेस। फिम्ब्रियाई हेल्प द बैक्टीरिया टू एडहेयर टू द सरफेस। किसी एक जगह पर चिपकने के लिए, रुकने के लिए, अटैचमेंट के लिए दीज फिम्ब्रियाई हेल्प, ये उसके साथ उस सरफेस पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। पिलाई क्या करते हैं? पिलाई आर यूजुअली लॉन्गर देन फिम्ब्रियाई एंड नंबर ओनली 1 or 2 per cell, and these पिलाई help in attachment of male bacteria to female. ये बड़ा नया चीज आया है। अभी तक तो हम लोगों ने बोला था कि बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, और हमने कहा था कि बैक्टीरिया में मेल फीमेल होता ही नहीं है। लेकिन ये एडवांस स्टडीज में मालूम चला है कि कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा, उन्हें हम कहेंगे वी कैन से एज अ मेल वन। एक जिसमें नहीं होगा, एक्चुअली मेल फीमेल वर्ड यहाँ नहीं यूज करते हैं, यहाँ पर प्लस और माइनस करते हैं। एक जिसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको कहते हैं प्लस बैक्टीरिया, एक जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसको कहते हैं माइनस बैक्टीरिया।
तो ये जो प्लाज्मिड वाला है ये अपना प्लाज्मिड दूसरे में ट्रांसफर कर सकता है। सो जब ये प्लस और माइनस बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते हैं उस समय में ये पिलाई उस समय में हेल्प करता है उनको एक दूसरे के साथ अटैच होने में, सो दैट प्लाज्मिड का ट्रांसफर हो सके। ओके, नाउ द लास्ट वन इज द फूड रिजर्व। बैक्टीरिया ऑल्सो हैव फूड रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जो भी कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा, या लिपिड जो है वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स और पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये एक केमिकल का नाम है। इस फॉर्म में फूड स्टोर होते हैं, मेनली ग्लाइकोजन या फैट, या समटाइम्स इट इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के फॉर्म में ये होते हैं। So with this we have completed one topic of this chapter, that is structure, shape and size of bacteria. Okay, so that's all for today. Tomorrow we will discuss about the nutrition, respiration, reproduction of bacteria and different type of bacteria, I mean different divisions of bacteria like prokaryote, like your Archaebacteria, Eubacteria, Cyanobacteria, and fourth one is Mycobacteria.